Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to summarize unit number 17, which is final account of a banking company, right? पिछले बहुत सारे सेशंस में हमने around 16 session which are already get uploaded. I hope you guys are watching these particular session on regular basis. तो आप लोग थोड़ा अपना फीडबैक भी शेयर करते रहा करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी सेशंस को जरूर शेयर करें, राइट। सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द कोर्स कंटेंट ऑफ यूनिट नंबर 17. Again, like this is very simplest one, and you'll get 3 to 4 marks question based on this particular unit. And जो मॉड्यूल बी का सीक्वेंस आपका चल रहा है अबाउट फाइनल अकाउंट, सो दैट कंटेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दिस यूनिट आल्सो, ठीक है। So final account of a banking company, which include definition and functions of bank, requirement of banking companies as to accounts and audit. Then we have significant feature of accounting system of bank, principal book of accounts, preparation and presentation of final account of a banking company, accounting treatment of specific items, preparation of profit and loss account, comments on profit and loss account, importance of balance sheet, disclosure requirement of bank to be added as note to accounts, disclosure presentation describe sorry disclosure prescribed by RBI under Basel 3, bank listed on a stock exchange, implementation of Indian accounting standard. So this is your course content. Yeah, course content काफी ज्यादा है, but हाँ, when you'll study this particular unit, you will find it is quite easier, right? अगर आपने पिछले 2-3 units आपका पढ़े, so this unit start with the bank or the functions of bank, which we all know, ठीक है। पीपीबी में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। So banks or even in RBWM also, ठीक है। So banks are financial institutions. Like the meaning of bank is borrowing for the purpose of lending. So this is the core working of banks. So nowadays, like as per BCBS classification, we have 8 major business activities or business line, which are further categorized among 3 parts. These are, first one is banking book, which deal with deposit and advances. Second one is trading book, which deal with trading activities of bank. And third one is off balance sheet exposure, which is guarantee related work provided by banks like letter of credit and others, right? So bank is a lawful organization. A bank is a lawful organization that accept deposit and allow withdrawal on demands. It provide loans to customers, right? This is a very simple one. Everybody knows about this particular thing. Okay? So borrowing for the purpose of lending is the primary work of bank, right? So a banking company is generally governed by the provision of Companies Act 2013, क्योंकि बैंक भी एक कंपनी की तरह आपका पहले रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। देन वी हैव जो आपकी जो ओवरऑल गवर्निंग्स आपकी होती है, सो दैट जनरली कम्स अंडर द आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट। So the Banking Company Act 1949 came into force on 16th of March 1949 as a result of long felt need to regulate the banking business in India and interest of number of depositors. Okay, so quickly go through this particular one. के मीनिंग के बारे में, ठीक है। सो बैंक मींस आपका इंडिया में अगर हम लोग जैसे देखते हैं, ठीक है। सो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है।
सो नाउ इन इंडिया बैंक विच इंक्लूड नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, जहाँ पे 11 बैंक हमारे पास हैं, ठीक है, और देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 नंबर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव टोटल 12 नंबर्स. Foreign banks having branches in India around 42 or 43 something. Cooperative banks, regional rural banks, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, ठीक है. तो ये जो हमने अभी डेफिनेशन आपका डिस्कशन किया, तो दिस इज अराउंड दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो लेंडर्स एंड डिपॉजिट बोरोवर्स, ठीक है. तो दो तरीके से आपका, फर्स्ट बैंक इज अ बैंक दैट जनरली वर्क एज एन इंटरमीडियरी, ठीक है, बिचौलिए की तरह काम करता है, ठीक है. सो लेंडर्स की अगर हम लोग बात करें, deposit funds with bank in form of CASA and RAFA deposit, and borrowers then borrow money from the bank. This is like liability product and this is asset product for the bank. Okay, बहुत ही basic है. Now section 5 of banking regulation act 1949, जो आपका बैंक का मीनिंग या जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपका दिया गया, एंड दैट इज वेरी सिंपली गिवन एज लाइक बोरोविंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, ठीक है. तो ये कुछ आपका मेजर स्ट्रक्चर आपका जो देखने के लिए मिलेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है. सो एसेट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, लोन इन एडवांसेस विच कवर दीज, एंड लाइबिलिटी प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट्स लाइक डिमांड डिपॉजिट which can be demanded by customer anytime, ठीक है. सो जिसमें आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, एंड टर्म डिपॉजिट आपका राफा प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है. बहुत ही बेसिक है, आप सभी लोग इनको जानते हैं. अब यहां से आपका आगे का जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है. सो दैट इज अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एज टू अकाउंट्स इन ऑडिट, ठीक है. एक चीज मैंने आपको इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है. So banking companies in India, they have to prepare their accounts as per section 29 of Banking Regulation Act 1949, ठीक है. So section 29 of Banking Regulation Act 1949, जिसके हिसाब से आपको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है. बैंकिंग कंपनीज को आपका दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 29, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन आपका जैसे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ठीक है. तो जिसमें आपका दो बेसिकली, एक आपका फॉर्म ए विच इज परफॉर्मा बैलेंस शीट, ठीक है. सो परफॉर्मा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, जैसे अभी के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, विच इंक्लूड 12 शेड्यूल्स, ठीक है. टोटल कितने शेड्यूल हैं आपका यहाँ पे? 12 शेड्यूल्स, ठीक है. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो डिवीजन आपको दिया गया, ठीक है. दूसरा आपका फॉर्म बी इज परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जहां पे आपको 6 शेड्यूल मिलेंगे इंक्लूडिंग नोट टू अकाउंट्स, ठीक है. तो टोटल आपका 18 शेड्यूल आपका, जिसमें मतलब ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थर्ड शेड्यूल, ठीक है, थर्ड शेड्यूल आपका, जहां पे ये सब बातें की गई हैं. और इस तरीके से आपका आरबीआई के द्वारा जो फॉर्मेट यूज किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, दैट इज प्रिस्क्राइब अंडर दिस, ठीक है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन. देन इसके ऊपर आपका सिग्नेचर होंगे, ठीक है. एंड अगर हम लोग सिग्नेचर की बात करें, सो इट शुड बी लाइक कम से कम 3 डायरेक्टर का सिग्नेचर आपका होना जरूरी है, ठीक है. सो आफ्टर प्रिपरेशन आपका अगर हम लोग सिग्नेचर की बात करें, ठीक है, तो कितने डायरेक्टर आपका? 3 डायरेक्टर्स, ठीक है. अगर आपका किसी बैंकिंग कंपनी के अंदर इफ वी हैव लेस देन 3 डायरेक्टर्स, सो ऑल द डायरेक्टर्स. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है. आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर सिग्नेचर, एवरीथिंग्स, वी हैव टू कंडक्ट ऑडिट ऑन दीज पर्टिकुलर वन, ठीक है. आपको इनको आपका एक ऑडिटर हायर करना पड़ेगा, ठीक है. सो ऑडिट आपको कंडक्ट करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 आपका, ठीक है. अब ये जो ऑडिटर होगा, सो दिस ऑडिटर आपका जो भी अपॉइंट किया करेंगे आप, ठीक है. सो बिफोर अपॉइंटिंग, बिफोर रीअपॉइंटिंग एंड टर्मिनेशन, यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. एंड ऑडिटर कौन होगा? सो ऑडिटर को आपका डिफाइन किया गया किसमें? सेक्शन 227 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है. जो ऑडिटर्स के राइट, आपका जो लाइबिलिटीज या आपके पेनल्टीज, एवरीथिंग आपका इज डिफाइन अंडर दिस वन. और जो एक नॉर्मल कंपनी का या लॉ के द्वारा कोई ऑडिटर डिफाइन किया गया, वही आपका बैंकिंग कंपनी का भी ऑडिटर हो सकता है, ठीक है. तो ये सारी बातें जिनको आपको ध्यान रखना है.
इफ आरबीआई कंडक्ट स्पेशल ऑडिट, ठीक है, अगर किसी के ऊपर आपका किसी बैंक के ऊपर स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, सो इट विल कम अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आपका इंस्पेक्शन किसी बैंक के ऊपर होता है, ठीक है, इंस्पेक्शंस आपका होता है, तो दैट इज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 35, ठीक है। दीज ऑल सेक्शंस बिलोंग्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो इंस्पेक्शंस है इट कैन बी कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट किया जा सकता है आरबीआई को टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन एनी बैंक। तो ये सारे जो सीक्वेंसेस जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाने होते हैं, ठीक है। सो if you talk about this particular one, a company registered under any Companies Act 13 is required to present financial statement, balance sheet and profit and loss account. The format is given under Schedule 3rd, which is part of your Companies Act. We'll come to the format also, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे अकाउंटिंग पीरियड का, सो इट इज सेम लाइक 1st April to 31st March. Earlier it was 31st December, that calendar year, but now it is 1st April to 31st March, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर्म ए, फॉर्म बी जहां पे आप करेंगे, ठीक है। सेक्शन 29 आपका सिग्नेचर से रिलेटेड आपका जो पोर्शन हमने बात किया, ठीक है, साइन बाय द प्रिंसिपल मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड बाय एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, और इन केस वेयर वी हैव 3 और लेस देन 3 डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फॉरेन कंपनी के केस में, ठीक है, सो फॉरेन बैंकिंग कंपनी आर टू बी साइन बाय मैनेजर और एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन द इंडिया। प्रोविजन सेक्टर 29, जिसमें आपका ये सबके ऊपर आपका अप्लाई होता है, ठीक है, बहुत बेसिक है। ऑडिट हमने बात किया यहाँ पे आपका, ठीक है। सो आफ्टर ऑडिट, जैसे आपको सेक्शन 30 जो भी आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको ऑडिट कंडक्ट कराना होता है। एंड आफ्टर ऑडिट, so 3 copies of balance sheet, 3 copies of profit and loss accounts along with auditor's report you have to submit with RBI within 3 months आपका, ठीक है। ये बहुत पॉइंट है जो बार बार आपका पूछा गया, जैसे अक्टूबर 23 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, 3 copies of balance sheet, 3 copies of profit and loss account prepared under section 29, auditor's report along with auditor's report under section 30 submitted to be RBI within 3 months, ठीक है। 3 months आपका, ठीक है, 3 महीने के अंदर आपको या विद इन 90 डेज यू हैव टू सबमिट विद आरबीआई, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड यू हैव टू सबमिट विद रजिस्ट्रार ऑफिस आल्सो विद इन 6 मंथ, ठीक है। आगे आपका पब्लिकेशंस रूल 15 आपका विद इन 6 मंथ्स, जो आपको इसको न्यूज़पेपर में एटलीस्ट जहां पे आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहां के जो भी फाइनेंशियल जार्गन्स है उनमें आपका इसको पब्लिश करना अनिवार्य आपका रहता है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। कोई भी बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को अगर आप इंडिया में ओपन करते हैं, सो यू विल सी द सेम सीक्वेंस। नाउ इफ यू कम टू द बुक, आप जब बुक को पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे सीक्वेंस लाइक व्हाट कम्स अंडर कैपिटल, एक एक करके मतलब टोटल 18 शेड्यूल को आपका काफी डिटेल में आपका एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सो ये मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था। सो थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए, form of balance sheet as on 31st March 2024 for this year. कैपिटल एंड लाइबिलिटीज पहला, ठीक है, जिसे आप देखें 12 शेड्यूल को, ठीक है। सो कैपिटल, बैंक की आपका जो कैपिटल है, ठीक है, और इसके ऊपर जो नोट टू अकाउंट्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ सेक्शन शेड्यूल आपका 18, ठीक है। सो कैपिटल इज डिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 2, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट आपका शेड्यूल 2A। आप माइनॉरिटीज इंटरेस्ट बेसिकली जो सब्सिडरीज हैं अदर्स हैं उनके ऊपर है। नोट डिपॉजिट्स आपका जो भी बैंक के द्वारा डिपॉजिट लिए गए 3 के अंदर, बोरोविंग्स आपका बैंक के द्वारा जो भी बोरोविंग्स हैं 4 के अंदर आपका, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोरोविंग, डोमेस्टिक बोरोविंग कैन बी फ्रॉम आरबीआई, अदर बैंक एंड डीएफआईज, ठीक है, एंड इंटरनेशनल बोरोविंग आपका किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, देन इन सबका टोटल, ठीक है। तो ये आपके 5 शेड्यूल्स व्हिच आर पार्ट ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। देन एसेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई 6, ठीक है। बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7, कॉल नोटिस विच इज रिसीवेबल विद इन 24 आवर्स, शॉर्ट नोटिस विच इज रिसीवेबल विद इन 14 डेज। अगर हमारा बैंक किसी को शॉर्ट नोटिस भेज रहा है दैट मींस दैट मनी वी विल गेट विद इन 14 डेज, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर 8, then we have advances loan given by bank 9,
फिक्स्ड एसेट आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स गुडविल टेंजिबल इंटेंजिबल एवरीथिंग 10, अदर एसेट आपका 11, ठीक है। देन वी हैव कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आपका 12, ठीक है। अब यहां से दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइक सो मेनी टाइम एग्जामिनर विल आस्क कि जो प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स विच कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ like which schedule of performa form A या performa balance sheet और form A, ठीक है। So you have to remember this, पहली चीज। दूसरा, जैसे there was a question कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है आपका वो किस में हम लोग किस हेड के अंदर उसको शो करेंगे, सो इट इज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस कम्स अंडर विच शेड्यूल, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशंस के अंदर आपका देखने के लिए मिल सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड यू कैन टेक रेफरेंसेज ऑफ योर बुक ऑल्सो, जहां पे आपको ये डिटेल में मिलेंगे। एंड इवन इन जो हमारे आने वाले सेशंस होंगे जहां पे भी मैं भी इसको आपको डिटेल में आपका बताने वाला हूं, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम लोग बात करें फॉर्म बी, परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगेन आपका यहाँ पे जो शेड्यूल आपका जैसे 1 to 12 हमने वहां पे डिस्कस की, यहाँ पे 13 से लेके 18 आपका, ठीक है। 18 आपको नहीं दिख रहा है, 18 इज नोट टू अकाउंट्स, ठीक है, विच वी जनरली प्रिपेयर जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इनकम आपका इंटरेस्ट इनकम, आपका अदर इनकम 13 एंड 14, एक्सपेंसेस आपका इंटरेस्ट एक्सपेंड जो हमने इंटरेस्ट पे किया है एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो फॉर्म बी, थर्ड शेड्यूल, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इनकम इंटरेस्ट अर्न 13 एंड आपका अदर इनकम आपका 14 के अंदर, एक्सपेंडिचर 15 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो हमने इंटरेस्ट पे किया है लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज आपका 16 के अंदर। देन वील डिसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस आपका 17 के अंदर, जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस, प्रॉफिट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, शेयर ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लेस माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, consolidated profit for the year attributable to the groups and brought forward consolidated profit attributable to the group. Then आपका appropriation account, ठीक है। Let's say your net profit is 50 करोड़ for the year, तो अब ये जो 50 करोड़ का डिविजन है, लाइक हाउ मच डिविडेंड यू आर गोइंग टू अनाउंस, या फिर आपका जो रिस्क कैपिटल है उनको इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी प्रिपेयर आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा आपको इसके बाद ये देखने के लिए मिलेगा जिसमें जो नेट प्रॉफिट आपका हुआ है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, तो वहां पे हम लोग आपका एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो जो अमाउंट का डिवीजन है और कितना अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट के अंदर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड करें, कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। सो ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एंड प्रपोज डिविडेंड्स, बैलेंस कैरीड ओवर द बैलेंस शीट, ठीक है। सो टोटल आपका देन अर्निंग पर शेयर अदर्स विच इज गेट डिफाइंड, ठीक है, 17, ठीक है। अब इसके बाद आपका नोट टू अकाउंट्स, देखो नोट टू अकाउंट, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर, नोट टू अकाउंट इज ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो पिछले आपके 17 शेड्यूल हैं उनमें आपका लेट्स से कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर अगर कोई भी नोट है, लेट्स से इन्वेंट्रीज या कोई भी अदर आपका, ठीक है, लेट्स से आपका इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि हमने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है एंड व्हाट इज द करंट पोजीशन, या अगर हमने आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर आपका कोई नोट देना है, सो दैट इज द वन, ठीक है। तो उनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया विच आर पार्ट ऑफ योर शेड्यूल 18, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज इन नोट टू अकाउंट शेड्यूल 18, जैसे कैपिटल के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, एसेट क्वालिटी के बारे में, बिजनेस रेशियोज, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एक्सपोजर्स टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आपका, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ पेनल्टीज बाय इम्पोज बाय आरबीआई, ठीक है, अगर आपके ऊपर आरबीआई के द्वारा कोई पेनल्टी लगाया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्यों वो पेनल्टी लगाया गया था और कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, कितना लॉस हुआ, सब कुछ, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आपका प्रोविजन इन कंटिजेंसीज, फ्लोटिंग प्रोविजन, ड्रॉ डाउन फ्रॉम रिजर्व, disclosure of complaints, disclosure of letter of comforts issued by bank, then आपका provision coverage ratio, bank assurance business, concentration of deposit advances and आपका exposure and NPAs,
तो कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक कि जैसे कहां से हमारे पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट आ रहे हैं, कहां पे हमने सबसे ज्यादा एसेट्स आपका क्रिएट किए हैं, ठीक है। सेक्टर वाइज एनपीए कैसे है, मूवमेंट ऑफ एनपीए कैसे है, ठीक है। ओवरसीज एसेट कितने हैं, एनपीए एंड रेवेन्यू क्या है, ओवरसीज बैलेंस शीट सॉरी ऑफ बैलेंस शीट एसपीबी स्पॉन्सर कितना है, अनअमोर्टाइज पेंशन एंड ग्रेचुइटी लाइबिलिटी कितना है, disclosure on remuneration, disclosure relating to securitization, credit default swap, intra-group exposures, transfer to depositors, education and awareness funds, ठीक है। इसके अलावा unhedged foreign currency exposures। तो जो भी आपका लेट्स से अगर आपका किसी के ऊपर भी कोई भी मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, नोट टू अकाउंट मींस इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि स्टेक होल्डर्स को आपका जो फाइनल अकाउंट्स है उनको समझने में हेल्प करे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो ये जो आपका पिछले 2 अकाउंट्स हैं या 2 रिपोर्ट्स हैं, आपका परफॉर्मा बैलेंस शीट या फॉर्म है, ठीक है, जो इस तरीके से आपको मिलेगा हर किसी बैंकिंग कंपनी का इंडिया में, क्योंकि ये फॉर्मेट कहां पे दिया गया है, सेक्शन 29 बी आर एक्ट 1949, ठीक है। या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके ऊपर अगर कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर आपको देना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद शेड्यूल 18 व्हिच इज नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। सो दिस इज इट। तो अब अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो ये जो 18 शेड्यूल है ना, ये काफी डिटेल में आपको वहां पे दिए गए, ठीक है। व्हेन विल कम विद द फाउंडेशन क्लासेस वी विल डिस्कस दीस पर्टिकुलर वन आल्सो, एंड आई विल कम अप विद अ मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां से आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाएं, ठीक है। तो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख लें, ठीक है। हर रोज 7 बजे हम लोग आपका इवनिंग में ये सेशन करते हैं, और अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको उतनी चीजें दे रहा हूं जो आपको एग्जामिनेशंस में आपका अच्छे मार्क्स करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपको मतलब लाइक यू डू नॉट हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ये टारगेट मत रखिए। सिंपल सा टारगेट रखिए कि यार जेआईबी क्वालिफाई करना है, एंड बिलीव me guys, if you follow this content you will score 70 plus in your upcoming examination, ठीक है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो 70 की गारंटी मैं आपको देता हूं अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे। दूसरी चीज कि आप रेगुलर रहिए, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कीजिए कंटेंट को। देखो एंड टाइम पे आपका एग्जामिनेशन में आपके ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई सी यू टुमारो एट 7 PM, ठीक है। कल फिर से आपका 7 बजे मिलेंगे, और यूनिट नंबर 18 जो आपका कोर बैंकिंग सिस्टम है, बहुत छोटा सा यूनिट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो आपके कॉलीग्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, so they can also get benefited from these particular session, right? So this is it from my side guys, thank you for watching this session, bye bye, take care all, have a nice day, thank you.